चल लॉ में फिर भी आ गए थे, लॉ के बाद वाले में और गायब हो गए थे। ये पता लॉ निकलेगा नहीं अब तो और भी नहीं गए। Hi guys, welcome back to the channel. So as you guys know from the thumbnail that I have with me today two SRCC students who recently gave their CA foundation attempt and they are here to share their overall experience and some tips and tricks for you. Uh, Hello everyone, I am Radho Saraf. I reside in Faridabad, Haryana. I am pursuing BCom Honors from SRCC. I am also doing CA and gave my CA foundation attempt this September and scored 320 marks. Hello guys, this is Lakshita Mister and I live in Sanjanagar, Burari, Delhi and I am doing BCom Honors from Shriram College of Commerce and I recently gave my CA foundation 2025 September attempt. I scored 272 marks in it. एज़ वेल एज़ लाइक कब तुमने एक्चुअली स्टार्ट किया पढ़ना गिवन दैट कि तुम्हारा कॉलेज तभी स्टार्ट हुआ था लाइक सितंबर में अगस्त में सो दैट्स Uh, so yes, so my score in CA foundation was 320, and yes, I started studying in around July last. Very seriously, I started studying in July last. However, I was studying a bit earlier, but not in that serious way. However, from July last, I started studying CST. For me, I started in April and from 10th April, I remember the date because my coaching started from that day. But after that, I studied till June, the proper way we could say. In July, I suffered dengue because of which I was admitted in the hospital. And 1 month passed in it, like very weak. I was feeling very weakness and I was not able to study properly actually. And then in August we started the college was started and it was creating problem for me because already I was lacking behind and to cover up all the syllabus and do all means it was very difficult for me. But in this September what I decided not to go college for 10 to 15 days before my exams and I just rested at my home and I just did whatsoever I could. लाइक मैंने पूरी मेहनत करी उस टाइम पर कि अब तो निकालना है कुछ भी हो जाए क्योंकि उसमें 1 महीने की नहीं, बहुत पहले की मेहनत थी। एंड अगर आपने एक बार सोच रखा हो ना कि इफ यू हैव टू डू, यू कैन डू इट, नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड माय स्कोर वाज़ 272। दैट्स रियली ग्रेट लक्षिता। सो सेकंड सबसे ज़्यादा डाउट ये आता है कि सीए फाउंडेशन के लिए कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं या फिर यूट्यूब के ऊपर पढ़ना चाहिए? सो वी वुड लाइक टू नो कि आपने क्या प्रेफ़र किया था एंड ऑल्सो क्या मतलब सिर्फ़ यूट्यूब इनफ है? Uh, so I believe that it all depends on you. And from my point of view, since I started late, so yes, I have taken a fast track batch and was studying from my own as well. So yes, means I took both the ways. However, it all depends on you that how you understand the things and how much you know from your class 11th and class 12th the concepts. So it all depends on you. Can if you want, you can tell कि like which faculty did you prefer? So actually, I took the fast track batch from physics wala. Oh. For me, I took the classes as I told from 10th of April. So my coaching was Vaibhav Jilan classes, and it's in Rithala, Delhi. I prefer them in Inter as well because I just love them. The teachers are just so lovable teachers. Like वो कभी demotivate होने नहीं देते. Even in I was just suffering dengue, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी. Like they told कि पहले अपने ऊपर ध्यान दो. यार पढ़ाई हो जाएगी फिर भी, अगर शरीर चला गया तो सब कुछ चला जाएगा, लाइक दिस थिंग वाज़ देयर, बट येस दे मोटिवेटेड मी एंड हो गया, उन सब टीचर्स की बहुत हेल्प थी। सो आई वुड से कि जैसे राघव ने कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन यू, सो येस इट डिपेंड्स अपॉन यू, लाइक कोचिंग लेने के बाद भी ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं कर पाता और कोई होता है कि सेल्फ स्टडी से काफ़ी अच्छा कर लेता है, क्योंकि उसका बेस काफ़ी स्ट्रांग होता है एंड इफ बेस इज स्ट्रांग यू कैन जस्ट बिल्ड अप द बिल्डिंग, राइट? So do you guys like did you apart from the coaching मतलब कोई यूट्यूब चैनल या कोई ऐसे ऑनलाइन कुछ रिपोर्ट किया था? So yes, actually I referred some YouTube videos as well. However, I do not remember as such at which channels I generally use. But it was like that I searched on YouTube and the videos I found relevant, I used them. फॉर मी आई डिडंट यूज़ यूट्यूब फॉर बिकॉज़ मेरे टीचर्स ने मुझे इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रखा था पहले से, चाहे वो
वीडियो लेक्चर्स का मटेरियल हो या फिर बुक्स हों, सैम्पल पेपर्स हों, एमटीपीज़, आरटीपीज़, ऑल वाज़ प्रोवाइडेड इन द बुक्स. So I didn't even need to go to any website even for searching of papers and all. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। सो कमिंग फॉरवर्ड टू कि लाइक जिस 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 दिन तुम्हारा रिजल्ट आया, तो लाइक उस दिन तुम्हारा रिएक्शन क्या था ओवरऑल, वो बताओ सबको। एंड क्या तुम्हें एक्सपेक्टेशन थी कि तुम्हारा इतना स्कोर बन गया है यहाँ? So I generally believe in hard work and do not expect like this should be that this will happen or that would happen. So I was just like that I have given my hard work. I have did what I could do. So whatever would be the result, I would be happy with that. So it was that. So उस मैं इट्स ओके, हाँ बोले, कुछ ही नहीं, कि लाइक तुम्हारा रिएक्शन क्या था रिजल्ट आते होगे? व्हाट कुड आई से लाइक वो जब इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ, फिर पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। माय पेरेंट्स वर लाइक हो जाएगा, नहीं हुआ तो हम हैं तेरे साथ, कोई बात नहीं अगला दे दियो, इसमें कुछ नहीं है, कुछ जा नहीं रहा तेरा। लाइक 3 महीने की मेहनत और लगेगी या कुछ। बट हम आई ट्रस्टेड द प्रोसेस कि मेरे साथ जो हो रहा है कोई बात नहीं, इट्स इन माय फेट, आई विल ट्राई माय बेस्ट। एंड थोड़ा-सी घबराहट भी थी, बट ये था कि जैसे कोचिंग में हमारे टेस्ट हुए थे, इंटर स्कूल भी टेस्ट करवाए थे उन्होंने। बिल्कुल वैसा माहौल देकर सब कुछ। तो आई स्कोर्ड 315 आउट ऑफ दैट 400 में से। तो मुझे ये था कि अगर मैं यहाँ ला सकती हूँ तो आई कुड स्कोर देयर आल्सो। बट एक जगह ये भी थी कि इन अकाउंट्स पेपर मेरे साथ अकाउंट्स के पेपर में द मेन एग्जाम आई जस्ट गॉट पैनिक। आई डोंट नो व्हाई बट कुछ ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मुझे था कि इसमें रह ना जाऊँ। बट फिर भी द थिंग इज़ कि तुमने अपने आप को सँभाला एंड दैट्स द थिंग वो जो आती है कि हाँ, तुम्हें करना है। तो हो गया बस। और रिएक्शन वाज़ कि आई जस्ट स्टार्ट वीपिंग लाइक माय मदर वाज़ आल्सो देयर, दे वर शॉक्ड कि हाँ, हो गया बस। मेहनत रंग लाई है। दैट्स नाइस। सो सबसे ज़्यादा यही डाउट रहता है कि लाइक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या चैलेंज तुमने फेस किया? लाइक मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के लिए लॉ एज़ अ सब्जेक्ट क्योंकि बहुत नया होता है, मैथ्स क्योंकि अगर 12th में तुमने ले रखी है, तो हो जाता है, अकाउंट्स भी थोड़ा-थोड़ा को भी थोड़ा-थोड़ा हो जाता है। बट लॉ सबसे ज़्यादा नया होता है, तो लाइक व्हाट वुड यू रिकमेंड कि अगले अटेम्प्ट वाले बच्चों को लाइक कैसे, लाइक तुमने लॉ में कैसे टैकल किया था? तो यस, सो लॉ, हाँ, लॉ नया होता है थोड़ा सब्जेक्ट क्योंकि जनरली वो नहीं पढ़ा होता पहले। तो फिर लॉ के लिए बेसिकली मैंने तो बस यही था कि पढ़ना है, कि वही चीज़ है कि फ़ियर है जिस चीज़ से उसको पढ़ो, तो वो उसी से निकलेगा। तो फिर वही पढ़ा, फिर से पढ़ा, तो फिर मेन चीज़ कि करना है। तो मेन चीज़ वही है कि आप बस उसे पढ़ो लॉ को, उसके समझो भी कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आप उसको पढ़ो भी कि अगर पेपर में आए तो आप आंसर लिख पाओ। तो इस तरीके से। हाँ, सो ओवरऑल लाइक व्हाट वाज़ योर अप्रोच, लाइक कि राइटिंग प्रैक्टिस करी या मतलब किस वे में लॉ को एक्चुअली स्टार्ट करना चाहिए? So I referred the videos to first understand the concept, and then I referred the ICA study material to read the concepts and to read the book so that I could know that what to write and how to write the thing. So I also saw some RTP questions and RPP questions, the questions given in ICA study material. So I referred to them, and that's all. फॉर द लॉ आई वुड से कि राइटिंग इज़ मस्ट। लाइक सबसे पहले चीज़ होती है कंसेप्ट। इफ़ यू नो द कंसेप्ट यू कैन राइट इट मतलब तुम अच्छे से लिख पाओगे उसको। कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, तुम अच्छे से लिख सकते हो। और राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए नेसेसरी है, इट विल इंक्रीज योर स्पीड। ठीक है। और दूसरा चीज़ ये हो जाएगा कि जब तुम एग्जाम में लिख रहे हो ना, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू रिमेंबर द फॉर्मेट कि तुम्हें किस तरीके से लिखना है। कि अगर ऑप्शन जैसे क्वेश्चंस में पार्ट्स आ रहे हैं तो उसको कैसे लिखना है, और अगर एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है। तो यस, मेरे टीचर्स मुझे टास्क असाइन करते थे कि तुम्हें इतने क्वेश्चन एक दिन में करने हैं या तुम्हें ये क्वेश्चन करने। सो इट रियली हेल्प मी फॉर द इनिशियल मंथ्स। देन एज़ आई टोल्ड कि फिर नहीं हो पाया इतना पॉपअप मेरे साथ, तो उसमें प्रॉब्लम आती थी। बट येस, डेली का अगर तुम असाइन करते हो कि 4 पेज करने हैं, तो उसको करो अच्छे से। बट ऐसे करो कि तुम भूलो ना, एंड रिवीजन इज़ मस्ट। सो लाइक सिंस क्योंकि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन आया था कि सितंबर में पेपर है एंड देन अगस्त में कॉलेज न्यू न्यू स्टार्ट हो गया, साथ में लाइक काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी भी रहती है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा वगैरह। तो उस टाइम पे कैसे अपने आप को लाइक मोटिवेटेड रखा और लाइक क्या कोई टाइम टेबल फॉलो किया था?
तो फिर मैंने एज़ सच कोई टाइम टेबल तो फ़ॉलो नहीं किया था, बट वो चीज़ थी कि अब सितंबर में देना है, तो पढ़ना तो है, कि अब बिना पढ़े तो ऐसे तो नहीं है कि बिना पढ़े देना है एग्ज़ाम, तो वो चीज़ है। तो फिर बस वही चीज़ था कि मेट्रो में जा रहे हैं, तो मेट्रो में पढ़ लिया, बीच में टाइम मिल रहा है, तो वहाँ पे पढ़ लिया। तो वो चीज़ थी कि अब करना तो है, तो फिर अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उस तरीके से सब बस हो गया और कई बार वही हो जाता है कि बस आप फ्लो के साथ चलते रहते हो कि सब हो रहा है, आप बस अपने एफर्ट्स डालते रहते हो, तो वैसे ही हो। सो द टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो वो तो खुद करना ही पड़ता है। मतलब जब हमें पता है ना डेडलाइंस आ रही हैं और एक ज़िम्मेवारी जिसको कहते हैं कि है, तो हम अपने आप को फिर उस हिसाब से तैयार करते हैं कि हमें क्या करना है। और इट डिपेंड्स अपॉन यू सीरियसली कि तुम्हें किस चीज़ के लिए कितनी प्यार है। लाइक इफ़ यू लव समथिंग यू विल डू एनीथिंग फॉर इट। तो बस ये चीज़ होती है और मैनेज करना मतलब थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेक्चर फ्री है, लाइब्रेरी में चले जाओ, बैठ के पढ़ो। लाइक राघव टोल्ड कि मेट्रो में आई विल टेल कि मैं ऑफलाइन कोचिंग लेती थी। सो मेरा ट्रैवलिंग टाइम ही 1 घंटा था जाने का ही और आना-जाना 2 घंटे हो गए। सो इफ आई हैव टू चेंज द मेट्रो उस टाइम मैं अपना फ़ोन बंद कर देती वरना इन द मेट्रो आई यूज्ड टू ओपन माय नोट्स इन द फ़ोन एंड आई जस्ट यूज्ड टू रिमेंबर द लॉ बिकॉज़ लॉ को तो पूरा टाइम चाहिए। तो मैं उस टाइम पर भी बस लॉ चलता रहता था। ओके। सो नेक्स्ट डाउट एक ये काफ़ी ज़्यादा आता है कि लाइक सीए में ऐसे कहते हैं कि स्टडी मैथ पूरा पढ़ लो तो हो जाता है। बट लाइक वुड यू रिकमेंड कि हमें साइड से और कोई बुक्स लेनी चाहिए? या फिर अगर स्टडी मैथ भी कर रहे हैं तो उसको लाइक कैसे करें? क्योंकि बुक्स काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। तो उसको लाइक कैसे कैसे स्किम करें एंड में रिवीजन कैसे करते हैं? सो बेसिकली मेरे पास तो एज़ सच ज़्यादा टाइम नहीं था एक तरीके से क्योंकि मैंने प्रिपरेशन थोड़ी लेट स्टार्ट की मेरे को लगता है। तो उस वजह से तो फिर मेरे पे तो था कि स्टडी मटेरियल ही पढ़ूँगा, तो फिर मैं तो पूरा रीड ही कर रहा था। जैसे स्पेसिफिकली लॉ के लिए भी पूरा स्टडी मटेरियल रीड ही कर रहा था। तो एज़ सच मेरे को उस टाइम तो इतना मैंने उस चीज़ को देखा नहीं कि क्या कुछ और मैं बुक्स वगैरह रेफ़र कर सकता हूँ। उस टाइम मैंने उस चीज़ पे तो इतना ध्यान नहीं। हाँ। और स्टडी मैट की आप जैसे बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए लाइक जैसे हम लेक्चर्स देख रहे हैं यू शुड प्रिपेयर अ शॉर्ट नोटबुक। उसमें जैसे कंसेप्ट है टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज यू राइट द कंसेप्ट और जो कंसेप्ट बनते हैं ना आपके दिमाग में अपना सेट होता है कि शॉर्ट में है। इफ़ यू हैव रेड द पैरा एंड यू हैव द कंसेप्ट बाय साइड कंसेप्ट आपको पता है याद है। लॉ की लैंग्वेज 10-12 बार जब पढ़ लोगे मतलब जैसे आपने रीड किया तो यू विल बी एबल टू राइट इट। सो दिस इतना बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इफ़ यू हैव द शॉर्ट मैथ्स आई तो मैंने भी बनाए थे शॉर्ट कोर्स। हाँ। That's nice. So for the last question, I would like to ask कि one piece of advice you would like to give जिनका भी जैन में अटेम्प्ट आने वाला है लाइक 2 ही महीने रह गए हैं। तो ओवरऑल अगर सिनेरियो लेके चलो कि अगर अभी आपका जैन में अटेम्प्ट होता एंड मतलब तो आप क्या सोचते कि मुझे क्या ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए? तो जो भी आप जैन वाले अटेम्प्ट के बच्चों को कहना चाहते हो? सो पहली चीज़ तो स्टडी हार्ड, डू योर बेस्ट। अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो, फिर रिज़ल्ट जो आएगा वो तो देखा जाएगा बट अपनी तरफ से एफर्ट्स अच्छे से डालो। बस यही चीज़ ऑल द बेस्ट। फॉर द जैन स्टूडेंट्स आई विल टेल कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पहले पढ़ा होता है बट उसमें कई बार कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से आप आंसर गलत पढ़े जो मैंने भी किया हुआ है। सो मैथ्स के कंसेप्ट बहुत तगड़े अच्छे से सॉलिड रखो बिल्कुल। लॉ तो पता ही है सबको कि करना है तो मतलब अब से तो डेली प्रैक्टिस मतलब 1-2 क्वेश्चन तो चाहिए ही चाहिए मतलब मैंडेटरी है, लिखो उसको। फॉर अकाउंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन एमटीपी आरटीपीस भी करोगे, तुम अच्छा स्कोर कर लोगे एग्जाम में। एंड द लास्ट कम द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। एज़ वी नो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ केम फ्रॉम द इंटर, तो उसमें थोड़ा-सा क्योंकि ज़्यादातर पोर्शन अब मैक्रो से ही आता है, सो यू नीड टू टैकल दैट थिंग। बाकी इकोनॉमिक्स में तो यू विल स्कोर 95 अबव आई कैन गारंटी दैट। बस कंसेप्ट को अच्छे से तगड़ा रखो और जस्ट अपने भगवान पर, जिसको भी आप मानते हो, अपने पेरेंट्स पर और खुद पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखो कि यू विल बी एबल टू डू दैट एंड ऑल द बेस्ट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।